قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ جی خوش آمدید ماہ ربیع النور کی پرنور ساعتوں میں تقریری مقابلہ ہے دہن میں زباں تمہارے لیے، میں ہوں ڈاکٹر سید عمران ودود۔ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا پہلا سیمی فائنل ہے اور آج کے جو ہمارے کنٹیسٹنٹ ہیں وہ یقیناً پہلے آڈیشن کے مرحلے سے، اس کے بعد راؤنڈ کے مراحل انہوں نے طے کیے اور آج وہ سیمی فائنل میں ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ تو امید ہے بڑا اچھا مقابلہ آج ہوگا ان کنٹیسٹنٹ کے درمیان، اور آج بڑے ہی ننھے منھے شرکاء یہاں پر موجود ہیں ان کے مقابلے کو دیکھنے کے لیے۔ حسب روایت نہ صرف مقابلے کو دیکھنے کے لیے بلکہ ان کی رہنمائی کے لیے اور ہماری سرپرستی کے لیے بھی یہاں پر ججز کا ایک بہت ہی خوبصورت پینل جو کہ پہلے دن سے ہمارے ساتھ موجود ہے، تعارف کرواتا ہوں۔ ویسے تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب شاہد مسرور بھائی۔ شاہد بھائی سینئر اینکر پرسن ہے ARY QTV کے، اور ماشاءاللہ میں چاہوں گا کہ دو مہمان ہیں ہمارے جن کا تعارف میں اکٹھے پہلے کرا دوں۔ ڈاکٹر صاحب بھی ہیں، ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، یہ دونوں چونکہ ریڈیو پاکستان اور پھر پاکستان ٹیلی ویژن وہ ایک لیگیسی ماشاءاللہ ان کی، ہم آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے آشکار بھائی بھی تشریف رکھتے ہیں۔ آشکار بھائی کا تعلق تو ARY QTV سے ہے ہی اور وہ بھی پروگرام ہوسٹ کرتے ہیں، اور اپنے تینوں معزز مہمانوں کو ہم یہاں پر آج خوش آمدید کہتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا مقابلہ ہے اس کا عنوان ہے نوید سحر۔ ہم مقابلے کی جانب جائیں گے۔ آج جو ہمارے ساتھ کنٹیسٹنٹ ہیں میں ان کا تعارف کروا دوں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں جنید، محمد جنید، اور جنید کے ساتھ ہیں نبیہہ نور، اور نبیہہ نور کے ساتھ ہیں احتشام سفیر۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، عنوان ہے، وہ ہے نوید سحر۔ اور اس سے پہلے کہ ہم مقابلے کی جانب جائیں، محسن نقوی کے کچھ منتخب اشعار جو کہ ڈاکٹر صاحب کا حکم بھی ہے وہ میں پڑھتا ہوں۔ لفظوں کی روانی کا اس میں لطف دیکھیے گا کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں، گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفرق زمین اوج ثریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح قلم ہے، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زباں بول رہی ہے، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کر آیا لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں پڑے ہیں، اور کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا۔ کیا بات ہے جی، محسن نقوی زندہ باد۔ کیا خوبصورت لفظوں کی روانی ہے۔ بنا کسی توقف کے ہم بڑھیں گے اپنے مقابلے کی جانب۔ آج کے ہمارے پہلے مقرر ہیں محمد جنید، روسٹرم پر آئیں، تقریر کا آغاز کریں۔ صدر علی وقار، قانون قدرت اور دستور فطرت کہ ہر رات کے بعد سحر، ہر ظلمت کے بعد نور، ہر تنگی کے بعد آسانی اور ہر غم کے بعد خوشی ہے۔ نوید خوشی اور خوشخبری کے معنی میں آتا ہے، جبکہ سحر صبح اور فجر کے معنی میں آتا ہے۔ ساری رات کے اندھیروں کے بعد اور صبر آزما مرحلوں کے بعد جب صبح کا سحر اجلتا ہے تو سارے جہاں میں پھیل جاتا ہے، پرندے چہچہانے لگتے ہیں اور ان کی تسبیح کی آواز ہر طرف گونج رہی ہوتی ہے، اور موزن رب کی کبریائی اور اس کے حبیب کی نبوت اور رسالت کی گواہی اور صلاح و فلاح کی صدا کا بابرکت کام شروع کرتا ہے۔ مسجد کے مینار نوید سحر سنانے غفلت کے ماروں کو جگانے کے لیے گونج رہے ہوتے ہیں۔ اور علامہ اقبال نے بھی کیا خوب فرمایا ہے، یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شوستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا۔ صدر علی وقار، عالم کو چاروں طرف سے گہرائیوں نے ڈیرے ڈال رکھے تھے، حضرت انسان میں انسانیت ختم ہو چکی تھی، بیٹا ماں اور ماں بیٹے کی تمیز بھلا بیٹھے تھے، بھائی بہن اور بہن بھائی کی تمیز ختم ہو چکی تھی، لیکن کس کو پتا تھا کہ پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے تو اس دن 12 ربیع الاول پیر کا دن اور صبح صادق کا وقت تھا، اور صرف اس دن نوید سحر نہیں بلکہ مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے نوید سحر ہے اور نوید سحر ہے۔ اور
अलगर्ज मुकद्दस रिश्तों का एहतराम पामाल हो चुका था। कुरान कहता है तुम जहन्नम के घड़े के करीब थे। सदर अली वकार नवीद सहर का सही मतलब तो हमें प्यारे आका सरकार तो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताया कि उनकी पैदाइश से पहले इस दुनिया में अंधेरा था। कहते थे सुबह तो होती थी मगर दिलों में चरागा न था, ईमान की रोशनी न थी, भाई भाई और बाप बेटी का न था, भाई भाई और बाप बेटी का न था। लेकिन किसको पता था कि अगले दिन नवीद सहर एक ऐसा दिन आएगा कि हुजूर अकरम सरकार तो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम मुसलमानों के लिए एक खातमुल मुरसलीन के साथ साथ एक नवीद सहर का दिन भी बनेंगे। अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब कहा है, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थीं, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थीं। ये थे मोहम्मद जुनैद। हमारी आज की अगली मुकर्ररा है नबीहा नूर, तशरीफ लाएं। आज से 1400 साल पहले जब कायनात तारीकियों में डूबी हुई थी, वो दौर जब पूरी दुनिया जहालतों लाइल्मी के दबीज़ हिजाबों में पड़े सिस्कियाँ ले रही थी, पूरी दुनिया रुश्तो हिदायत से महरूम, इंसानों में ना खूबिए किरदार ना लज्जते गुफ्तार, लोग खुदा से दूर वहदानियत से बेगाना, अपने वजूद के मकसद से ना आशना। ऐसे में रब्बे कायनात ने जाने कायनात को नवीद सहर के साथ लिबासे बशरियत की सूरत में भेजा तो कुरान ने कहा लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, बेशक तशरीफ लाए हैं तुम्हारे पास एक बरगुज़ीदा रसूल। फिर नवीद सहर सुनाई, इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा। जी हाँ जनाबे वाला, ऐसी नवीद सहर के जिब्रील अमीन कहते हैं एक सितारा 70,000 बार चमकते देखा है। ऐसी नवीद के जिसकी तस्दीक अल्लाह ने तमाम अंबियाए कराम से करवाई। ऐसी नवीद कि इमाम कुस्कुरानी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि जब नूर मोहम्मदी को तख्लीक किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबियाए कराम की अरवाह को अपने नूर से ढांप दिया, जिसका तस्किरा तमाम आसमानी किताबों में, जिनकी आने की नवीद मूसा ने भी दी, ईसा ने भी। फिर नवीद सहर के बाद ऐसी सहर हुई जिसने कायनात का नक्शा बदल दिया। सिबगत अल्लाह का रंग बाजार से मस्जिद तक, मदरसे से अदालत तक, घर से लेकर कारदार तक छा गया। तहजीब को वकार, सकाफत को तकद्दुस मिला, तमद्दुन के गोशे गोशे की काया पलट गई कि मैं बेअख्तियार पुकार उठी। मिल गया नक्शे कफे पासे बहारों को फरोग, सुबह गुलशन आपके जलवों की है रंगीन अदा। यही नहीं, नवीद सहर ऐसी हुई कि मुसलमान तो मुसलमान, गैर भी फ्रांस का मारूफ जनरल नेपोलियन बोनापार्ट हो या अपने ज़माने का माना हुआ मौरख हिंटल, हिंदुस्तान की मारूफ मुकर्ररा मिसिस सरोजिनी हो, सभी नवीद सहर की सूरत वजूद में आने वाली उस जात के चर्चे करते हैं। तो मैं ये क्यों ना कहूँ, लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का ना था, मैं तो कहता हूँ जहाँ भर पे है साया तेरा। आज के हमारे आखिरी मुकर्रर हैं एहतशाम सफ़ीर। आइए जी एहतशाम, रोस्टम आपका। नवीद सहर लेकर तुलू ही सदर अली वकार, वो नवीद सहर जब अरब का चांद वादी मक्का में चमका और पूरे जहां को ताबद रोशन किया, वो नवीद सहर जब फजाए आलम मसरतों के दिल आवेज नगमों से गूंज उठी, वो नवीद सहर जिसने तहजीब को वकार, सकाफत को तकद्दुस, इल्म को वसत, अमल को महारत, नफरतों और अदावतों में सिसकती बिलकती इंसानियत को अखुवत और मोहब्बत के तोहफे अता किए। जब जिंदगी को बंदगी और बंदगी को सुरूर मिला, जब इश्क को हुजूर और इंसान को खालिक तक रसाई की मारिफत नसीब हुई, वो नवीद सहर कि जिसके जरिए उतरने वाले नूर ने सितारों को रोशनी, शम्सो कमर को ज़ुफ़िशानी, गुलिस्तानों को बहार और बहारों को बांगपन दिया। वो नवीद सहर कि जिसके बाद तवील तरीन शब जुल्मत इंतहा को पहुंची, वो नवीद सहर कि जिसकी बेमिसाली खुश अखलाकी ने
मोहरा जब्बारियत ज़दा इंसानों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। बिलाशुबा यही तो वो नबीद सहर थी कि जिसके इंतजार में गर्दिशे शामो सहर ने माह साल की लाखों करबटे बदल बदल कर इंसान को तमाम इर्तिकाई मनाजिल तय करवाए और इसके शऊर के बलोगत को इस मकाम पर पहुंचा दिया कि जब वो अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए किसी जामे सिफात हस्ती के लिए बेताब हो गए, वो नबीद सहर कि जिसके बाद जुल्म बर्बरियत के पंजों में जकड़ी हुई मजलूम इंसानियत को आजादी, मसाबात और मोहब्बत मिली। और फिर आने वाले वक्त ने ये साबित कर दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हक की फतह और बातिल की शिकस्त थी, मुनाफिकत की मौत और सदाकत की अलामत थी। वो दिन दुनिया में रोशनी के ज़हूर का दिन था, जिस नूर ने बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे गुलाम को अबू जहल और अबू लहब जैसे सरदारों पर दायमी सबकत दिला दी। इस रोशनी ने तमाम नस्ली, जुग्राफियाई, लिसानी और ताकती इम्तियाजात को पाश पाश करके महमूद और अय्याज को एक ही सफ में खड़ा कर दिया कि वादिये मक्का में जब नूरे यकीन रोशन हुआ, कि वादिये मक्का में जब नूरे यकीन रोशन हुआ, कुफ्र रुखसत हुआ, दीने मती रोशन हुआ। जो हटा सरकार से धुंधला गया, कुचला गया, जो आ गया आपके ज़ेरे नगी रोशन हुआ, जो आ गया आपके ज़ेरे नगी रोशन हुआ। शुक्रिया। क्या बात है भाई एहतशाम भाई, आपकी आवाज़ का सौती तासुर मुझे बहुत पसंद है, तो ये बात तो आपको पता है ना। चले जी, आज का मुकाबला अब मुकम्मल हुआ, नताइज कंपाइल किए जा रहे हैं। आज हमारा पहला सेमीफाइनल था। मैं साथ ही साथ ये भी बताता चलूं कि आज हमारा कोई एक फाइनलिस्ट भी फाइनल हो जाएगा, और जो लोग फाइनल में पहुंचेंगे, जो शुरका फाइनल में पहुंचेंगे, उनके लिए तहाइफ भी हैं, कैश प्राइजेस हैं पेरिडॉट्स की जानिब से। तो बहुत शुक्रिया पेरिडॉट्स आपका बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। अब जजेस के जानिब चलते हैं, मैं खुद चलता हुआ चला जाता हूँ और देखते हैं क्या नतीजा कंपाइल किया गया है। शाहिद भाई पहले आपसे। बात ये बेटा, आपसे मैं मुखातिब मोहम्मद जुनैद, आपका मवाद जो है वो जिसने भी लिख के दिया उन्होंने, जब हम महज़ब ज़बान इस्तेमाल करते हैं ना तो कुछ चीज़ों को अवॉइड कर रहे होते हैं। रिश्तों की पामाली के अलावा आपके पास कोई दलील नहीं थी, ठीक है, और वो हम चाहते हैं कि इन चीज़ों को अवॉइड करके हम अच्छी बातें करें दूसरी। खैर वो आपके मेयार की बात नहीं थी। इसके अलावा आपने तलफ़्फ़ुज़ पे बड़ी मेहनत की थी, लेकिन फिर भी सुबह सादिक़ को सुबह सादिक़ आप कह गए थे। फिर ये कि मौरख और मौरिख की थोड़ी सी गलती आपने की, वैसे तलफ़्फ़ुज़ बहुत सही था आपका नबिया, आपकी तक़रीर भी माशाल्लाह अच्छी थी, ठीक है, आपका मवाद भी बहुत अच्छा था। और छोटे मियाँ आपने आज एहतशाम साहब आपने हमें बताया है कि आपके पेट में आपकी दाढ़ी है, और इंशाल्लाह आप आने वाले वक्तों में अगर मेहनत करते रहे, नबिया आप भी, बेटा आप भी मेहनत करते रहे तो मकाम बनाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू शाहिद भाई। डॉक्टर साहब। बस माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बेहतरीन बोले हैं बच्चे। मामला फिर वही आ जाता है तलफ़्फ़ुज़ात का, उसकी तफसीलात में जाऊंगा तो बहुत वक्त लगेगा। बस कुदरत को कुदरत कहें, कुदरत ना कहें, सब्र ना कहें, सब्र कह दें, ख़त्म ना कहें, ख़त्म कह दें, और वो सुबह और सुबह वो तो हमारे शाहिद भाई ने बता ही दिया। कुरान को कुरान कहिए, कुरान ना कहिए। और जो शेर पढ़ा है उसमें भी ज़रा तवज्जो दीजिएगा कि इकबाल का शेर है या कोई किसी और बड़े शायर का शेर। तो बहरहाल ये बुनियादी बातें थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था, मैं किसी तरफ पॉइंट आउट नहीं करूँगा, कि इनमें से कोई ऐसे भी थे कि जो रटा हुआ लग रहा था बोल रहे हैं, और कभी कभी ऐसा लगता था जैसे खबरनामा भी चल रहा है उसके अंदर। तो ये अंदाज़ बदलिए, मुकर्रिर का अंदाज़ अपना होता है, वो अंदाज़ इख्तियार कीजिए ताकि बेहतर मवाद के साथ बेहतर शख्सियत आपकी उभरे और लोग आपको पसंद करने लगे। वैसे तो हम सब पसंद करते हैं आपको, लेकिन आपकी शख्सियत में उभार आएगा। बिल्कुल ऐसे ही, तकरीर हो, मुबाहिसे हों या मंजर निगारी हो, हर एक की अपनी जुदागाना हैसियत है। आशकार भाई आपकी राय भी और फिर फैसला भी मैं चाहूँगा कि आप ही सुना दें। नवीद सहर इतना खूबसूरत मौजू है कि इस पे आदमी जब बोलने पे तो बहुत बोल सकता है, लेकिन ये वक्त की क़ैद और फिर बच्चों ने अच्छी प्रेजेंटेशन दी। मोहम्मद जुनैद आपने मौजू को अच्छा वजाहत के साथ पेश किया, और लेकिन थोड़ा सा बेटा आपकी प्रेजेंटेशन में
नंबर आपके बहुत कटे हैं कि आप ऐसा लग रहा था कि जैसे पहले गियर में चल रही गाड़ी एकदम फोर्थ में चले गए, फिर आप थर्ड में बैक हो गए, फिर रिवर्स गियर भी लगा दिया, तो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में आपको तो मुश्किलात आएंगे। नबिया नूर आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, बड़ा मुतासिर किया, और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज, आपका फेस मूवमेंट और ये डिबेट्स में चीज़ें बहुत देखी जाती हैं, ठीक है ना। मैं बार बार कहता हूँ तकरीर में, डिबेट में, लेक्चर में, तीनों चीज़ों में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है ना। लेकिन आप मुझे एक अच्छा डिबेटर, एक अच्छा मुकर्रिर नज़र आया है बिकॉज ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज। कंटेंट बहुत अच्छा है, कंटेंट ज़ाहिर है सारे अच्छे होते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जैसे मोहम्मद नाम लिख दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कंटेंट बहुत अच्छा हो गया, ठीक है ना। तो इस हवाले से एहतिशाम सफ़ीर आपने तो आज यार बड़ा मुतासिर किया मुझे, और बहुत अच्छा आपने पूरी तकरीर आपकी घूम रही थी ना, नवीद सहर पे घूम रही थी कि नवीद सहर के असरात क्या हैं। वो बेटा असरात तो क़यामत क्या, क़यामत के बाद तक रहेंगे नवीद सहर के, कि उनका दर वो दर दौलत है जहाँ शाम व सहर भीख मिलती है फ़कीरों को सदा से पहले। ये नवीद सहर का असरात है, ठीक है ना। अब ये आलम है कि दामन का संभालना है मुहाल, कुछ भी दामने में न था उनकी अता से पहले। तुम नहीं जानते शायद मेरे आका का मिजाज, उनके कदमों से लपट जाओ सज़ा से पहले। आमीन। क्या तो कहने नबीद सहर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमद, उनकी बैसत मेरे रब का बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह ताला हम सबको सही मानों में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम और उनकी सीरत बयान करने वाला और सीरत में अमल करने वाला बना दे। आमीन आमीन। हमारा नतीजा क्या है? नतीजे के हिसाब से जो मैं नहीं देख रहा, लेकिन मैं मुत्तफिक हूँ कि जिसको मैंने हाई किया है, दोनों साथियों ने कौन उसको- अनाउंस उसको करेगा हाई आज किया आप तीनों होगा। में से? आशकार भाई बता दो। जी, तो तीनों बच्चों ने वो अच्छी प्रेजेंटेशन दी और बहुत जो मुकाबला बराबर का तकरीबन रहा नबिया और एहतिशाम सफ़ीर के दरमियान। लेकिन नबिया ने 40 सेकंड शॉर्ट तकरीर उसी की के है। नंबर कटे हैं, जी हाँ। नंबर कटे हैं उसके। तो आज के मुकाबले के जो विनर हैं वो एहतिशाम सफ़ीर। जी क्या बात है एहतिशाम भाई, बहुत मुबारक हो आपको। वेलकम इनटू द फाइनल्स। इंशाल्लाह आपसे फाइनल में मुलाकात होगी और फाइनल में मजीद भी 2 शुरका होंगे। जो 2 सेमीफाइनल हमारे बाकी हैं वो जीत कर जो फाइनल तक पहुंचेंगे। आज का प्रोग्राम अपने ख़ुदाम को पहुंचता है। इंशाल्लाह सेकंड सेमीफाइनल में कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।